यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫുൽപൂരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഖിലേഷ് യാദവും പങ്കെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ജനത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത തിക്കും തിരക്കിനുമിടയിൽ മൈക്ക് സംവിധാനവും തകരാറിലാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവും അതേ വേദിയിലിരുന്ന് ഇന്ത്യയിലെയും പൊതുവെ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ഇരു നേതാക്കളുടെയും സംയുക്ത പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവിഷ്കരിച്ച ഈ അപ്രതീക്ഷിത ചർച്ച 10 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്നു. പിന്നാലെ ഈ വീഡിയോ രാജ്യമാകെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ഓടുകയാണ്. ഈ തവണ രാഹുലും അഖിലേഷ് യാദവും പങ്കെടുത്ത ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിലെ ജനബാഹുല്യം യോഗി ആദിത്യനാഥിനെയും BJP കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. BJP ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോലും അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ. ഇതോടെയാണ് വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തിറങ്ങിയത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അഖിലേഷിനോട് ചോദിച്ചത്. 79 സീറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ടോക്കിയോയിൽ മാത്രമാണ് പോരാട്ടമെന്നും അഖിലേഷ് പ്രതികരിച്ചു. എന്തിനാണ് ടോക്കിയോയെ പരാമർശിച്ചതെന്ന രാഹുലിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കാശിയെ ജപ്പാനീസ് നഗരമായ ടോക്കിയോ ആക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി അഖിലേഷ് യാദവ് ഇത്തിരി പരിഹാസം കലർത്തി വിശദീകരിച്ചു. താങ്കളുടെ പിതാവ് അന്തരിച്ച മുലായം സിംഗ് യാദവ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ഉത്തരം വൈകാരികമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫുൽപൂരും അലഹബാദുമായുള്ള ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അഖിലേഷ് ആവേശത്തോടെ സംസാരിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരുടെയും മധ്യസ്ഥിതരുടെയും ആവശ്യവും വികാരവും മനസ്സിലാക്കിയതിനാലാണ് ആളുകൾ തൻ്റെ പിതാവ് മുലായം സിംഗ് യാദവിനെ ധർത്തിപുത്രൻ അഥവാ മണ്ണിൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് വിശദീകരിച്ചു. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ തവണ നേതാക്കളും മണികളും മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ഒത്തുചേർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിൽ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് മികച്ച വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തിളച്ചുമറിയുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനു മുമ്പിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है कि जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये वो लोग हैं दिखाओ जो अग्निवीर या पेपरवीर जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप मिल के जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में
1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए। देखिए, आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति करते रहे। हालांकि नेताजी कुश्ती पहलवान और गांव आप के भी थे। करते हो कुश्ती? नहीं, मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया। लेकिन नेताजी इसीलिए धरती पुत्र बोले गए कि वो जमीन की बात को समझते थे। धरती पर जो लोग हैं उनकी क्या भावना है उसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और आपका इस क्षेत्र से और इस शहर से आज का लगाव नहीं है, न जाने कितने सालों पुराना लगाव है। जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शहर और शहर से है वो शायद और किसी राजनीतिक परिवार का नहीं होगा। तो नेताजी से उनका हार्डवर्क और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहना, जो गैर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं लड़े थे। हालांकि हमारी आपकी विचारधारा की यहाँ टकराव रहा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत या जो सिद्धांत में कभी समझौता नहीं हुआ। सिद्धांत को लेकर के हमने आपके साथ खड़े हुए और कई बार खड़े हुए, और आपकी भी पार्टी सिद्धांत से बहुत करीब रही समाजवादियों के। बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे हमसे इंडिया गवर्नमेंट से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है, और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, महंगाई की चोट सबसे ज्यादा इन लड़कों को लगती है। हमारी थिंकिंग है और आपकी भी है कि ये जो 22-25 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा धन पकड़ा है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना। देखिए, ये जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ इनका भाग्य भी बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था ही बेहतर होगी। ये जरूरी स्कीम है कि इनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, जिससे थोड़ा बहुत जीवन स्तर इनका भी अच्छा हो। नरेंद्र मोदी जी डिबेट से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते। पूरा उनका झूठ का गुब्बारा है। वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, और उनको लगता है कि डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। डेमोक्रेसी में जितना डिस्कशन होगा, जितने विचार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बीजेपी के लोगों ने न केवल हमारी जान को खतरा पैदा किया है, बल्कि लोकतंत्र को भी और संविधान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसका नतीजा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ गया, ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन, ईडी, सीबीआई, ये लोग मतलब एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। कई बार सुनने को मिल रहा है और सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, लद्दाख की हमारी सीमाएं सुरक्षित हो गई, और अरुणाचल के आसपास या सीमा जो चीन से छू रही है वो बहुत असुरक्षित है। तो चीन से जहां हमारा सीमाओं का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बाजार को भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये जो स्कीम्स है, पहली नौकरी पक्की और महालक्ष्मी, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को जंप स्टार्ट करने के तरीके हैं। ये बहुत अच्छा जंप स्टार्ट होगा। इसको अगर फोकस होकर के
IIT, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, इन सबको इकोसिस्टम में ला करके मैं समझता हूँ युवा नौजवानों को अच्छी नौकरी और रोजगार मिल पाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि सब हर जात को भागीदारी मिले, स्पेस मिले, हर इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस में, एजुकेशन के सिस्टम में, तो वो हमारा, हम दोनों का लक्ष्य है। बिल्कुल, और क्योंकि जो बात सभी दल कहते थे, आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस भी कह रही है कि सामाजिक न्याय जरूरी है, जाति गणना जरूरी है। देश के लिए ये बड़ी चीज है। जो दुनिया में अमेरिका है, यूरोप है, अपने उन लोगों के लिए जो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं। तो हमारा जो देश जाति के आधार पर पिछड़ा है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ी भूमिका होगी इस बार। बहुत अच्छा लगा, अच्छी बहुत मीटिंग अच्छा रहा, बहुत अच्छी मीटिंग है। यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। क्या